Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Gemini Ascendant and how the month of December 22 is going to pan out for the Gemini Ascendant people. So we will first start with the Ascendant Lord. Ascendant Lord for Gemini Ascendant is Mercury, and in the month of December it is going to be stationed in the 7th house for the majority part of the month. Mercury is the owner of the first and the fourth house, and both the houses are very important houses because first house denotes our thought process and our personality, and fourth house denotes our domestic environment. The good part is this, that ascendant lord is going to be stationed in the seventh house from where it is going to aspect its own house. Now, seventh house is the house of marriage, partnerships, and opposition. Now, this is a very, very good position for you to get traction in the business. Key here is to approach others so that you can get your work done from them and progress in your business. But the interaction has to be initiated from your end in order to see the upside in your business. Since this is also the house for marital harmony, this is a very good time to spend with your spouse because Venus, which is a natural significator of partnership, is also going to pass through the seventh house. And since Venus is the natural significator of love and it is coming in the seventh house, you will have a very good time with your spouse or with your partner and you will enjoy their company in this month. People with the ascendant lord placed in the seventh house in the birth chart always hate doing things alone and they always desire a company to do things. So this is the best way to take advantage of this placement in the December month. Now Jupiter continues to pass through the 10th house in December, and Jupiter is the 7th house lord as well. So people who are in business will continue to get support of Jupiter in the month of December. And if you are also undergoing Jupiter Mahadasha in the current stage, then this will give you even better results on the professional front. Trick to utilize this Jupiter is to stop consuming non-vegetarian food till the time Jupiter is placed here. So till April 23, Jupiter will remain stationed here. So if you leave eating non-vegetarian food till that time frame, this Jupiter will further boost your results on the professional front in the positive manner. One of the ways to manage this Jupiter is also to take control of your resources and optimize them because this becomes very crucial during this transit of Jupiter through your professional house. Venus is the lord of fifth house as well as 12th house for Gemini ascendant, and it is going to pass through the seventh house where it is going to remain in conjunction with Sun and Mercury. After 17th of December, this stellium is getting created in the seventh house, and you will get the results of the seventh house in an extremely strong way, especially in the second half of December. If you have a business that is related to education, speculation, or you even run an art gallery, or you are in a fashion related business, then in December month you will see a good time because the fifth house lord is going to be stationed in the seventh. The third lord of courage will also be here in the seventh house, and first lord house in the seventh house lord in the 10th is giving you an opportunity to excel in your personal as well as professional relationship to a great extent. Key here is that Venus is hosted in the enemy sign of Jupiter. As a result, if you take a carefree attitude towards the business or your professional front, then it is going to backfire on you. So the approach needs to be airtight in the December month if you are aiming for a growth in business that is related to Venus. So as I said earlier, if you are engaged in education speculation, you run an art gallery or a fashion related business, then your approach needs to be very systematic and cautious. Carefree attitude will not support you in this month. Mars is going to pass through the 12th house and it is going to aspect its own house, which is the sixth house. Now, sixth house denotes health as well as your enemies. In this case, Mars is going to aspect its own house, so it is going to act as a shield against your enemies as well as giving you good health in the month of December. Mars is also the owner of 11th house of gains. So you will see gains through an investment in charity, through any kind of an investment in the foreign areas. There are a lot of people who invest in foreign countries. It depends on your personal risk taking capacity as well, but these results will be observed in a
very strong manner, and you can take advantage of them in the month of December. 11th house lord passing through 12th also indicates earning money through unknown sources. There is a good chance of earning money through the foreign lands in this month because Mars is a natural significator of lands. But I can understand that not everyone will be able to invest in that too in a foreign country. Since Mars is the owner of a fiery sign, if you deal with foreigners, especially in the areas that is related to healthcare, petrochemicals, then again this month will prove to be very profitable for you. Rahu continues to pass through the 11th house. Rahu's position is considered very good as far as house is concerned. Rahu is strongest in the 11th house in the chart, followed by 6th and 3rd house, where its placement is considered very good. The key here is that Rahu is not passing through its favorable sign, which is the sign of Gemini. Instead, it is passing through the Aries sign, which is again a fiery sign and introduces aggression in people. You have to be very careful when you are dealing with your friends or social circle because this kind of a placement of Rahu showcases betrayal by your friends, and you should have the ability to judge your real friends from those who are just sticking along with you for some kind of an advantage. You should shun any kind of a monetary dealing with your friends in this month. Any kind of a argument with your social circle needs to be avoided. Saturn is in the 8th house in its own sign, which means that you have to bring a research minded approach to everything you do till Saturn is stationed here. So January 23 is going to be very close now. It's only 1.5 months away. After this, Saturn is going to move in the ninth house. So Saturn in the ninth house in its own sign is going to open doors of success for you, provided you have worked sufficiently hard enough during this transit, because Saturn, when it goes to the ninth house, it opens opportunities for you through travel and through association with foreign countries. So I have made another video on the Saturn's transit, which was uploaded somewhere in April this year. So you can go back and you can see how this Saturn's transit is going to work out for your ascendant. For the current placement, when the eighth house lord is placed in the eighth house, this position promises inheritance to a person, and person can achieve great success if they get into something after doing a lot of research and making their decisions based on the data and facts and figures rather than based on opinion. Gemini ascendant people are very good with calculations because Mercury is a natural significator of commerce and business. So they can utilize this placement of Saturn to a great effect by changing their approach towards the way they do their things. Now, there are also certain dates when people need to be very careful, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. So for Gemini ascendant people, these dates in December are 6th and 7th of December, 21st and 22nd of December, and 25th and 26th of December. These are the dates when you should not take any crucial decision. Overall, if you look at how December is, it is a very good month for Gemini. They will be able to strike new business partnership, progress in their business, as well as able to enjoy their time with their spouse or partner. So that's the summary for this month for you. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए किस तरीके से निकलेगा। देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और लग्न स्वामी यहाँ पे प्रथम और चतुर्थ भाव दोनों का स्वामी बनता है। दोनों ही भाव अच्छे हैं। यहाँ पे लग्न स्थान स्थान का मालिक सप्तम भाव से भ्रमण करेगा और ये ज्यादातर समय दिसंबर के यहीं बैठा रहेगा। यहाँ पर इसकी युति बनेगी सूर्य और शुक्र के साथ। तो इस ये तिगड्डा यहाँ पे सप्तम भाव में बनने की वजह से और मंगल की अष्टम दृष्टि इस पर पड़ने की वजह से आपको सप्तम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट बहुत तीव्रता से अनुभव में आएंगे दिसंबर में। यहाँ पर जब भी लग्न स्वामी सप्तम भाव में जाता है तो व्यक्ति को बिजनेस में अच्छा करने का मौका बनता है, क्योंकि बुध स्वयं ही वाणिज्य का कारक है, यानी कॉमर्स का, बिजनेस का कारक है। तो यहाँ पर व्यक्ति को दूसरों को अप्रोच करना पड़ेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और आपका किस तरीके से दूसरों के साथ वार्तालाप होता है, क्या उस वार्तालाप की गुणवत्ता है, उसके बेसिस पे काफी हद तक ये डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस किस तरह से प्रोग्रेस करता है। अब सप्तम भाव में शुक्र भी भ्रमण करेंगे इस महीने में, और शुक्र जो है आपके प्रेम संबंधों का कारक होता है। तो यहाँ पर आप अपने
पार्टनर या अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता पाएंगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि लग्न स्वामी भी सप्तम में बैठेगा और आपका पंचम भाव का स्वामी भी सप्तम भाव में बैठेगा। तो ये बहुत अच्छा समय निकलेगा आपका आपके पति पत्नी या फिर आपके पार्टनर के साथ। और इसके अलावा आपको बिजनेस में भी काफी तरक्की के मौके मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं से जाके दूसरे व्यक्ति को अप्रोच करना पड़ेगा। गुरु भी बहुत अच्छी पोजीशन से गुजर रहा है अभी। गुरु सप्तम और दशम दोनों भाव का कारक होता है, तो कर्मेश भी हुआ और बिजनेस का कारक भी हुआ। तो यहाँ पर गुरु भी आपको सपोर्ट दे रहा है, तो ये बिजनेस में तरक्की का मंथ दोनों प्लैनेट से दिखता है, लग्नेश की पोजीशन से भी और गुरु की स्थिति से भी। यहाँ पर बैठ के गुरु, अगर आपको गुरु की महादशा चल रही है और आपका अगर दशम भाव में काफी बिंदु हैं अष्टक वर्ग के हिसाब से 30 के ऊपर, तो ये आपको रिजल्ट और भी तीव्रता के साथ देगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं गुरु की स्थिति का, तो अगर आप मांसाहार करना बंद कर दें जब तक गुरु यहाँ बैठा है अप्रैल 2023 तक, तो ये आपको और भी शुभ परिणाम देगा और आपके बिजनेस में या कार्यस्थल पे आपको तरक्की कराएगा। देखिए, गुरु एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है, यानी व्यक्ति का जो भी वो काम करता है या जैसे धन दौलत है जिसका भी संबंध गुरु के साथ आता है आपकी लग्न कुंडली में, उसको गुरु बहुत हद तक बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको कार्यस्थल पे तरक्की मिले, इसके लिए आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इसे मैनेज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु इतनी तेजी से एक्सपेंशन देता है कि व्यक्ति को रिसोर्सेज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं, तो वहाँ पे इतने आपके स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपको उसको मैनेज करने में मुसीबत हो जाती है। आप स्टाफ हायर करते जाते हैं लेकिन आपके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह के इसमें रिसोर्स मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोचिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। किसी भी बिजनेस में जब वो एकदम तेजी से बढ़ता है तो व्यक्ति को रिसोर्स मैनेजमेंट करने में बहुत मुश्किल आती है, और यहाँ पर यही इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। आप उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए और आपका बिजनेस आप देखेंगे बढ़ता ही चला जाता है। और उसके लिए गुरु की भी महादशा आपको लगनी चाहिए अगर आपको रिजल्ट और तेजी से देखने चाहते हैं तो। अब शुक्र पंचम और 12वें भाव का स्वामी बनता है और ये सप्तम भाव से गुजर रहा है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने पार्टनर के साथ तो अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा ही, इसके अलावा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सट्टेबाजी से जुड़े हुए हैं, या आप शुक्र से संबंधित कोई भी व्यवसाय करते हैं, यानी जैसे आप आर्ट गैलरी चलाते हैं या आप फैशन रिलेटेड बिजनेस में हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के में आपका व्यवसाय है, तो आपको दिसंबर के महीने में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना पड़ेगा। समय बहुत अच्छा है करने के लिए, लेकिन शुक्र के साथ समस्या ये है कि व्यक्ति केयर फ्री हो जाता है, वो ज़्यादा चिंताओं में नहीं पड़ता, वो अपने को एंजॉय करने में लग जाता है। तो अगर आप इन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बन रही है इन तरह के बिजनेसेस में भी तरक्की करने के लिए। यानी शुक्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो भी तरक्की के मौके हैं, क्योंकि देखिए तृतीय भाव जो कि करेज या एफर्ट का स्वामी है वो भी सप्तम में बैठा है, लग्न स्वामी भी सप्तम में बैठा है, सप्तमेश भी दशम में बैठा है, तो हर तरह से फेवरेबल पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर आपको परिणाम तभी मिलेंगे जब आप एक बहुत कॉशियस अप्रोच लेते हैं अपने काम के प्रति। केयर फ्री अप्रोच, अरे सब हो जाएगा मुझे परवाह नहीं, वो यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि उस तरह का अप्रोच शुक्र से रिलेटेड व्यवसायों में आप पर बैकफायर करने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यानी गुरु की राशि में बैठा हुआ है। गुरु देवताओं के गुरु थे और शुक्र राक्षसों के गुरु थे, तो उनमें आपस में कट्टर दुश्मनी है। तो यहाँ पर आपकी अगर अप्रोच सावधानी भरी है तो आपको परिणाम मिलेंगे, लेकिन केयर फ्री अप्रोच में फिर काम नहीं चलेगा। मंगल 12वें भाव से भ्रमण कर रहा है, मंगल अपने ही भाव को देखेगा, छठवें भाव को। तो यहाँ पे बैठ के या आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा, यानी बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा, और आपको आपके शत्रुओं से भी प्रोटेक्ट करेगा। दिसंबर के महीने में मंगल 11वें भाव का भी स्वामी बनता है। 11वें भाव से आप हर तरह का लाभ देखते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी का 12वें भाव में जाना, यानी आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन जगहों पे, फॉरेन
कंट्रीज में कई लोग ज़मीनें खरीदते हैं, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिनके भी पास पैसा है वो अगर करते हैं तो उनको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। या आप 12वें भाव से जुड़े हुए यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कई लोगों के स्वयं के एनजीओ होते हैं, तो उन सबको भी ये मंगल काफ़ी अच्छा लाभ देता हुआ जाएगा। अभी मंगल यहाँ पर 11वें भाव में मेष राशि है, तो पेट्रोकेमिकल्स या हेल्थ केयर के सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपको इस मंथ में काफ़ी प्रॉफिट होगा उन चीज़ों से जुड़ी हुई वस्तुओं से, अगर आपका व्यवसाय है तो। राहु 11वें भाव में बैठे हुए रहेंगे इस महीने में भी, तो राहु 11वें भाव में भाव के हिसाब से बहुत बढ़िया पोजीशन में है, क्योंकि राहु का जो सबसे अच्छे परिणाम मिलता है वो 3, 6 और 11 भाव में मिलता है, और 11वें में वो सबसे बलवान रहता है। 3, 6 और उसके बाद सबसे ज्यादा 11वें भाव में वो बलवान होता है। लेकिन यहाँ पे राशि फेवरेबल नहीं है, मंगल की राशि है, तो राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति बहुत अग्रेसिवली बिहेव करता है, और राहु उसको इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना के देता है कि व्यक्ति को लगता है कि वो किसी भी तरह का बिहेवियर करके बच के निकल जाएगा। तो वो वाली स्थिति में फिर बाद में बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो आप एक तो अपने दोस्तों से सावधान रहिए, और अपने सोशल नेटवर्क जो भी है आपका, उनके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए। कई बार आप देखते हैं लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे लोगों से लड़ने झगड़ने में लग जाते हैं, नहीं मेरा ओपिनियन सही है तुम्हारा गलत है एंड ऑल दैट, तो वो उसमें इन सब चक्करों में आप मत पड़िए इस महीने में। और किसी भी तरह को अगर आप दोस्तों को पैसे उधार देते हैं तो वो भी आपको वापस नहीं मिलेंगे इस स्थिति में, तो किसी भी तरह का उधारी देने से बचिए दिसंबर के महीने में। और अपने मित्रों को आपको जज करना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का राहु व्यक्ति को एक सबक दे के जाता है। आप गलत लोगों पे भरोसा करते हैं जिसकी वजह से आप धोखा खाते हैं। इस केस में आपका सोशल नेटवर्क या आपके दोस्त आपको धोखा देने की पोजीशन में रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। शनि अष्टम भाव से भ्रमण करते रहेंगे इस महीने में भी। देखिए, शनि अष्टम भाव के ही मालिक हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना यानी कि आप अगर अपने आप को एक नंबर बेस्ड इससे बांध लेते हैं, यानी मैं किसी भी चीज़ को अगर निर्णय ले रहा हूँ या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन ले रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ डिसीजंस जो बेस कर रहा हूँ वो फैक्ट्स पे कर रहा हूँ, नंबर्स पे कर रहा हूँ, तो ये शनि आपको बहुत अच्छा परिणाम देके जाता है। गट बेस्ड डिसीजन मत लीजिए, रिसर्च बेस्ड डिसीजन लीजिए, ये इसका सबसे अच्छा तरीका है शनि को इस्तेमाल कर लेने का। शनि यहाँ पे जनवरी 2023 तक बैठे रहेंगे, इसके बाद ये नवम भाव में मूव कर जाएंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है पहले जिसमें मैंने शनि के कुंभ राशि में भ्रमण पर जनवरी 2023 से लेके सितंबर 2025 तक, जब तक शनि यहाँ बैठे रहेंगे, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है। तो आप अपने लग्न के अनुसार देखिए कि मिथुन लग्न वालों के लिए शनि आपको कैसा परिणाम देगा। वैसे नॉर्मली जब भी शनि नवम भाव से गुजरता है तो वो व्यक्ति के लिए विदेश से अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, बाहर जाके तरक्की करने के ऑप्शंस। तो ये पोजीशन शनि के लिए नवम भाव में बहुत अच्छी स्थिति बनाएगी जनवरी 2023 के बाद। लेकिन अभी के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठना। और आपको खाली अपनी थोड़ी सी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। देखिए, मिथुन लग्न के आप लोग हैं, आप वैसे भी कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध का तो संबंध ही नंबर से आता है, कॉमर्स से आता है, बिजनेस से आता है। आपके लिए ये प्लेसमेंट का इस्तेमाल कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से अपना अप्रोच बदल के इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब ऐसे महीने में कुछ दिन आते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। तो इन दिनों में महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए। तो मिथुन लग्न के लिए दिन है 6 और 7 दिसंबर, 21 और 22 दिसंबर, और 25 और 26 दिसंबर। इन 6 दिनों में सावधानी बरतिए, कोई भी की डिसीजन लेना आप टालिए। आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है आपकी ग्रहों की दिसंबर के महीने में, क्योंकि लग्नेश का सप्तम भाव में, जैसा मैंने आपको बताया, बैठ रहा है वो। तो धंधे के लिहाज से बहुत अच्छा समय है, और अगर आप पारिवारिक सुख देख रहे हैं, स्पाउस या पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताने का सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये बहुत अच्छा समय है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।